हाय एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लोग क्लास 9 के चैप्टर सेल को जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, आज हम लोग बायोलॉजी देखेंगे अपने पहले वीडियो में, जिसमें कि आज हम लोग का टॉपिक है सेल, कोशिका। जो कि क्लास 9 का है। तो हम लोग आज सबसे पहले जानेंगे कि सेल क्या होता है। व्हाट इज द सेल? सेल जैसे कि आप देखते होंगे, आप लोग के किसी बुक में ये भी आता है, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल कैसे एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है? जैसे कि हम देखते हैं कि इस पूरी दुनिया में बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे हैं। तो सारे जीव जंतु पेड़ पौधों का एक सबसे बेसिक यूनिट है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट जो बोलते हैं, जिससे ये शरीर बना है, वो है सेल, जिसे हम नेक्ड आंखों से नहीं देख सकते। सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, इसे हम नेक्ड आंखों से नहीं देख सकते। नॉट सीन बाय नेक्ड आइज। तो हम इसे कैसे देख सकते हैं? सीन बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, जिसे हिंदी में सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। सेल द स्मॉलेस्ट यूनिट of life or of life of body, which is not which cannot be seen by eye, naked eyes. We can only see cell by the help of microscope. Cell. Now, what is the definition of cell? Cell is the structural and functional unit of life. Unit of life. How? Here two term comes, structural and functional. So we have to know what is meant by structure and what is meant by functional. How is the cell the structure and functional unit of life? We can also see here that there are various types of cells. You can see here that some organisms contains only one cell. They are called unicellular. Whereas some contains many cells, like human beings. And we can say there is a lot of variety in cells. Some are small, some are big, some are long. So, how is the cell a structure unit of life? Structure, ढांचा, जिसे हम हिंदी में ढांचा कहते हैं, बनावट यूनिट है, और इसी से हमारा शरीर बनता है। हमारे शरीर में जो कुछ भी है सब सारे कुछ सेल से बने हैं। हमारा शरीर एक ढांचा है ना, स्कल सब कुछ होता है, सब सेल से बने हैं। और फंक्शन कैसे? वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट पंप्स ब्लड, all the things, all the system are made of cell. Heart are made up of cell. Our digestive system are made up of various types of cell. So it is structure and function because it helps in all the functions which are being doing in our body. All the functions are done by cell. So here we came to know that cell is the smallest unit that we can't see by our naked eyes. It can also only be seen by the help of microscope, and it is a structural and functional unit of life.
So if we study cell, so here a term came which is known as cytology. The term cytology means study of cell. तो कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं. साइटो मीन्स सेल, here cyto means cell and logy means to study or study. So cytology means study of cell, कोशिका का अध्ययन. Here in class 9 we are studying cell in biology, but in higher education you will have means a subject in specialization of only cell, koshika is given. So their study of cell is called cytology. In biology, when you read means only cell in a specialization, there is not word cell. In biology, cell is known as cyto. The term cyto is used instead of cell in biology. So here we see some basic information about cell. What is cell? Cell is a structure and function unit of life. We came to know what is structure and what is functional. We can't see cell by our naked eyes, and what is cytology. Now we will see the discovery of cell, because cell is the basic cell is the minute, we cannot see. So anyone have discovered it, someone have discovered it. So we will see here now that who had discovered cell. One term also came as a basic knowledge, not in biology, that discovery. What is the meaning of discovery and invention? There are two terms which use discovery and invention. So discovery means to discover things which exist, means कि ऐसे चीजों का खोज करना जो पूर्व से ही है, उपस्थित है, बस हमने उसे अभी तक खोजा नहीं, और उसका खोज करना ही डिस्कवरी है. जैसे सेल मानव शरीर में हमेशा से है. मानव शरीर नहीं, इस जगत में जितने भी जीव हैं के शरीर में पहले से सेल मौजूद है. तो मौजूद सेल का खोज करना डिस्कवरी कहलाता है. एंड many things like bulb and many inventions in physics and many other field, we see that people invent things, means they make them by themselves, means कि वो खोज नहीं करते हैं, अपने नवाचार से उसे बनाते हैं. जब खोज होगा तो डिस्कवर होगा, लेकिन अगर कुछ नया बन रहा है तो वो इन्वेंशन होगा. नाउ वी कम टू आवर टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ सेल. So in this way, the first name that come is, what is it? Robert Hooke. The first name that come is Robert Hooke, means कि सेल का, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था. Then came कि वो कब किए थे. तो
In 1665, Robert Hooke discovered the cell. Now the term came that which type of cell he discovered. So he discovered dead cell. उन्होंने डेड सेल, मृत कोशिका का खोज किया। कैसे खोज किया? He took a cork. Where do we find cork? In nowadays you can see the cork. You can take the medicine bottle. It has cork. जब आप लीजिए दवाई का बोतल तो उसका ढक्कन होता है, ढक्कन में लगा होता है एक कूट टाइप का, वो होता है कॉर्क। He took that cork. और वो कॉर्क किसका? bark of tree. और we can see tree bark. पौधों के छाल। तो उन्होंने पौधों का छाल लिया, ट्री बार्क लिया, और उन्होंने खुद के माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया, जो कि बहुत बेसिक माइक्रोस्कोप था, जिसे अब लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इन्वेंट किया। ये क्या आया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक के द्वारा उन्होंने जब माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें ऐसे संरचना दिखाई दी। जैसे मानिए कि ये माइक्रोस्कोप का स्लाइड है, और जब उन्होंने इस पे रखा बार को तो उन्हें किसी जगह ऐसी संरचना दिखाई दी। और किसी किसी जगह मतलब किसी दूसरे भाग में हर तो एक ही ढंग का संरचना होता नहीं है, और किसी किसी में उन्हें ऐसा दिखाई दिया। लाइक दिस। उन्हें ऐसा संरचना दिखाई दिया। तो इसमें उन्होंने जो ये एक कंपार्टमेंट दिख रहा है इस रेक्टेंगल में, यू कैन सी वन, इसमें इंडिविजुअल जितने भी है, उन्होंने इसे सेल का नाम दिया। ये भी इसमें जो एक सर्कल है इसमें उन्होंने इसे सेल का नाम दिया। अब वो कैसे समझे कि ये डेड सेल है? तो उन्होंने जो सेल का निर्माण किया सूखा हुआ था। आप आगे भी पढ़ेंगे कि सेल सूखा नहीं होता। लिविंग सेल में प्रोटोप्लाज्म होता है जो कि लिक्विड होता है, जो कि उसे जीवित रखने में मदद करता है। लेकिन ये जितने भी सेल उन्होंने देखा ये सब सूखे हुए थे, तो इसीलिए उन्होंने डेड सेल का खोज किया। इसलिए हम लोगों ने कहा कि उन्होंने डेड सेल का खोज किया। तो ये हो गया रॉबर्ट हुक, जो सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोज किया, 1665 में खोज किया और डेड सेल का खोज किया। अब उसके बाद आते हैं और एंटोन वान लीeuwenhoek, इन्होंने भी सेल का खोज किया। अब इनके और रॉबर्ट हुक के खोज में क्या अंतर था? सी नाउ, रॉबर्ट हुक जो खोज किए थे वो एक डेड सेल का खोज किए थे, लेकिन वही अब एंटोन वान लीeuwenhoek इन्होंने भी सेल के खोज के लिए अपने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था, मतलब खुद से माइक्रोस्कोप बनाए थे। तो इन्होंने भी
सेल का निर्माण किया, लेकिन इनका सेल लिविंग सेल था। तो इन्होंने 1674 में लिविंग सेल का खोज किया। इन्होंने कहां से लिया, मतलब कौन से सेल को लिया, कहां से इन्होंने लिया मटेरियल? तो एंटन वॉन लीeuwenhoek ने क्या किया कि उन्होंने बैक्टीरिया लिया था। आप आगे पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं। बैक्टीरिया लिया, वाटर बॉडीज के कुछ सूक्ष्म जीव को लिया और इसी तरह के छोटे छोटे सूक्ष्म जीव को लिया, और इन्होंने जो देखा उसे लिविंग सेल कहा गया, ये जीवित सेल था। तो अगर कभी पूछा जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये लेसन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसका वेटेज ज्यादा है। तो अगर पूछा है कि सेल का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक, जिन्होंने डेड सेल का खोज किया था। लेकिन अगर पूछा जाए कि लिविंग सेल का खोज किसने किया था, तो एंटन वॉन लीeuwenhoek, जिन्होंने 1674 में लिविंग सेल का खोज किया था। इसके बाद भी बहुत सारे, मतलब फिर भी इसके बाद माइक्रोस्कोप भी डेवलप करता गया और भी खोज होने लगे। इसी करीब में आ जाता है न्यूक्लियस का। तो इसका खोज हो चुका था, सेल का खोज हो चुका था, अब आता है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। इसके लिए इन्होंने भी माइक्रोस्कोप बनाया, अपना माइक्रोस्कोप। और ये कब हुआ? 1831। इसके लिए इन्होंने भी अपना माइक्रोस्कोप बनाया और तब से माइक्रोस्कोप डेवलप किया। अब तक में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी आ चुका है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हुआ था आविष्कार, वो 40,000 टाइम्स इनलार्ज कर सकता था। और सबसे लेटेस्ट जो माइक्रोस्कोप यूज होता है वो 2 लाख टाइम्स इनलार्ज कर सकता है। तो आप जान सकते हैं कि माइक्रोस्कोप का कितना, मतलब डिस्कवरी के साथ इसका भी विकास हुआ। तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज किया। अब इसके बाद हम लोग सेल थ्योरी को जानेंगे। उससे पहले हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में कुछ लिख लेते हैं और जानकारी ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कब आविष्कार हुआ, किन्होंने किया, और ये कितना इनलार्ज कर सकता है, ये हम देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि रॉबर्ट हुक, जो कि सबसे पहले सेल का आविष्कार किए थे, उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था और वो उसके बाद डेवलप हुआ था। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है सो ई रस का, अर्नस्ट रस्का और मैक्सनॉल और एमनॉल हम लिख देते हैं अभी। मैक्सनॉल के द्वारा खोजा, मतलब डेवलप किया गया था, इन्वेंट किया गया था, जो कि जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने माइक्रोस्कोप का खोज किया था, जो कि 40,000 टाइम्स मैग्नीफाई कर सकता था। 40,000 टाइम्स मैग्नीफाई कर सकता था। इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। उसके बाद इसका भी विकास हुआ और विकास के बाद अब तक में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया जा चुका है
जो कि 2 लाख टाइम्स मैग्नीफाई कर सकता है। 2 लाख टाइम मैग्नीफाई कर सकता है। अब इसके बाद हम लोग सेल थ्योरी को जानेंगे कि सेल थ्योरी क्या होता है, मतलब किन्होंने दिया, उन्होंने क्या कहा सेल के बारे में, ये हम जानेंगे। सेल थ्योरी, ये सेल थ्योरी एमजे स्लाइडन और स्वान के द्वारा दिया गया था। दो थे, एमजे स्लाइडन एंड थियोडर स्वान। के द्वारा दिया गया था। अब ये एमजी स्लाइडन और थियोडर स्वान थे कौन? तो एमजी स्लाइडन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे, और थियोडर स्वान एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। सेल थ्योरी दो एमजी स्लाइडन और थियोडर स्वान के द्वारा दिया गया। एमजी स्लाइडन जर्मन बॉटनिस्ट थे और थियोडर स्वान जर्मन जूलॉजिस्ट थे। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन हो सकता है। तो सेल थ्योरी का क्या फीचर था, उन्होंने क्या क्या बताया, तो इसमें हम कुछ पॉइंट में जानेंगे। सबसे पहले इन्होंने बताया कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। बेसिक यूनिट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। सबसे पहला पॉइंट, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। दूसरा, सेल इज द बेसिक यूनिट of all metabolic activities। इसके बारे में तो हम लोगों ने डिफिनेशन के माध्यम से भी जाना है कि सबसे बेसिक यूनिट, सबसे बेसिक यूनिट प्लांट सेल, मतलब जो भी जीव जगत में है उनका सेल ही होता है। और बेसिक यूनिट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मींस स्ट्रक्चर, फंक्शनल में आता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर फंक्शनल एक्टिविटीज, like the example I have given, or digestive system, respiratory system, okay, nerves, heart pump, all are metabolic activities. And third is that cell contains hereditary material. Materials, which means DNA. All the cells have DNA. ये सेल थ्योरी के माध्यम से एमजे स्लाइडन और थियोडर स्वान ने बताया कि सेल कंटेन्स हेरिडिटरी मटेरियल्स। हर सेल के पास अपना डीएनए होता है। एंड
द लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल ये कैसे? सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स मीन्स अगर कोई सेल, जैसे कि कोई सेल है शरीर में, सेल है फॉर एग्जाम्पल, या हमारी ये सेल है इस तरह से हमारे शरीर में, बाय अब एग्जाम्पल के रूप में हम ले रहे हैं, ऐसा होता है, मतलब जरूरी नहीं कि हर जगह ऐसा सेल हो, ऐसा सेल है और इसमें से ये सेल डैमेज हो गया तो ये तो हट जाए यहाँ से, तो अब क्या होगा, ये जगह तो खाली रह नहीं सकता है, तो ये सेल डिवाइड कर जाएगा फिर, और ये सेल दूसरा बन जाएगा, और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जहां भी हम लोग का देखते हैं शरीर में अगर कहीं डैमेज हो जाता है, कट जाता है, तो आप देखते हैं कि वो हील हो जाता है। तो सेल में डिवाइड करने का, ऐसा डिवाइड करने का क्षमता है, इसी को कहते हैं अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब पुराना सेल जो भी शरीर में है वही डिवाइड करके फिर नए सेल का निर्माण करता है और डैमेज सेल का क्षतिपूर्ति करता है। सो दिस इज सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये था सेल थ्योरी विच वाज गिवन बाय एम.जी. स्लाइडन एंड थोडर स्वान। अब इसका एक्सेप्शन भी है, मतलब आगे भी जानेंगे और दूसरे चैप्टर्स में भी जानेंगे जब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो अब देखिए कि वायरस जब लिविंग थिंग्स पे रहता है, लिविंग बींग्स पे रहता है तो वो लिविंग की तरह कार्य करता है, और जब वो नॉन लिविंग थिंग्स पे रहता है तो नॉन लिविंग की तरह कार्य करता है। इसका मतलब है कि वो इस श्रेणी में खड़ा नहीं उतरता है, मीन्स कि वो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है, ऐसा सेल हो सकता है। वायरस एक सेल है लेकिन वो नॉन लिविंग पे नॉन लिविंग की तरह कार्य करता है और लिविंग पे लिविंग की तरह कार्य करता है। सो सेल थ्योरी भी हो गया। अब हम इसके आगे जानेंगे कि सेल कितना मतलब सबसे बड़ा सेल कौन है, सबसे छोटा सेल कौन है, इस प्रकार का हम टॉपिक जानेंगे। अगर आपको बोला जाए कि सबसे बड़ा सेल इस दुनिया का कौन सा है तो क्या होगा, अभी हम जानेंगे। नंबर ऑफ सेल्स, साइज, हम सबके बारे में भी जानेंगे। तो हम देखेंगे वैरायटी इन सेल शेप एंड साइज। हमारा पूरा शरीर सेल से बना है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा पूरा बॉडी एक ही प्रकार के सेल से बना है, पूरे में एक ही तरह के सेल है। तो यहाँ हम जानेंगे कि आप इसके आगे पढ़ेंगे कि यूनिसेलुलर सेल होता है, यूकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो यूनिसेलुलर में आते हैं बैक्टीरिया, जैसे कि सबसे पहले अगर आप ये नंबर में आते हैं कि अगर नंबर के आधार पे, अगर हम नंबर के आधार पे करें तो वन सेल भी, मतलब सिर्फ एक सेल के भी होते हैं, वो होते हैं यूनिसेलुलर। ये कौन होता है, इनके एग्जाम्पल बैक्टीरिया, पैरामीशियम। इसके बारे में हम लोग आगे भी चैप्टर में जानेंगे, अभी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये हो गया नंबर के आधार पे। यूनिसेलुलर में आते हैं पैरामीशियम, बैक्टीरिया।
इस बार होते हैं मल्टी सेलुलर। तो आप देख सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग भी मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल होता है। हमारे शरीर में बहुत सारे सेल होते हैं। तो हम देखे अभी तक कि यूनिसेलुलर में बैक्टीरिया और पैरामीशियम होता है, वही मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल से बने होते हैं, जिसका एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग भी होता है। प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स एनिमल्स हैं, इसमें भी एक्सेप्शन हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए जानिए कि जितने प्लांट्स और एनिमल्स हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट और एनिमल्स, यहाँ तक कि ह्यूमन बीइंग मल्टी सेलुलर है। अब स्मॉल और बिगर समझते हैं। अगर पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन है ऑन अर्थ, तो स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ये डिजीज भी कॉज करते हैं, पीपीएलओ, ठीक है। और सबसे बड़ा बिगेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल हम लोगों ने देखा माइकोप्लाज्मा है, और ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है। और लार्जेस्ट सेल कौन सा है? तो लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग है, ऑस्ट्रिच एग। ये हम लोगों ने पूरे जीव जगत के बारे में जाना कि उस पूरे जीव जगत में सबसे स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा है और सबसे लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच है। यहीं अगर हम ह्यूमन बीइंग में आ जाए, ह्यूमन बीइंग भी बहुत सारे सेल से बना है, तो अगर हम ह्यूमन बीइंग में आ जाए तो क्या होगा? अगर हम ह्यूमन बीइंग में आ जाए तो क्या होगा? अच्छा, ह्यूमन बीइंग मल्टी सेलुलर है, इसका मतलब ये नहीं कि शुरुआत से ही उनके पास बहुत सारे सेल था। कोई भले ही मल्टी सेलुलर हो या फिर यूनिसेलुलर हो, उनका शुरुआत, उनका डेवलपमेंट एक सेल से ही शुरू होता है। एक सेल से फिर वो मल्टी सेलुलर होते हैं। तो इसमें ह्यूमन बीइंग में अगर हम आ जाए, ह्यूमन में, तो फिर लार्जेस्ट कौन है? लार्जेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल और लॉन्गेस्ट सेल। तो इसमें हम देखेंगे कि लार्जेस्ट सेल है ओवम, स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म, और लॉन्गेस्ट सेल अगर लार्जेस्ट हो गया सबसे बड़ा, और लॉन्गेस्ट का मतलब लंबा। बड़ा और लंबा में अंतर होता है। तो लॉन्गेस्ट सेल कौन है? न्यूरॉन। तो वो पूरे जीव जगत में था, पूरे में था कि सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ा ऑस्ट्रिच। वहीं अगर बात आ जाए ह्यूमन बीइंग में, तो सबसे लार्जेस्ट ओवम, स्मॉलेस्ट स्पर्म और लॉन्गेस्ट न्यूरॉन होता है। अब हम लोगों ने ये भी देख लिया। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल के बारे में। अभी तक में हम लोगों ने क्या जाना? अभी तक में हम लोगों ने जाना कि सेल क्या होता है, सेल कितनी वेरिएबिलिटी पाई जाती है, उसमें कितने प्रकार का होता है, कोई मल्टी सेलुलर होते हैं, कोई यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन कोई भाई यूनिसेलुलर भाई मल्टी सेलुलर, सबका डेवलपमेंट एक सेल से ही होता है। इसके बाद हम लोग स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट पढ़ा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट पढ़ा। इसके आगे एक सेल अलग अलग प्रकार से, एक सेल जो है विभिन्न सेल ऑर्गेनेल से बने होते हैं। हम लोग अब सेल ऑर्गेनेल के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।